نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اجلاس، وزارت تجارت کی جانب سے برآمدات بڑھانے کے لیے مجوزہ حکمت عملیوں پر بریفنگ، تجارتی سامان کی بہتر اسکیننگ اور معائنے کی استعداد بہتر بنانے سے متعلق تجاویز پیش۔ افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت تجارت کے مختلف پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کسٹمز حکام کو غیر منظم سرحدی راستوں پر نگرانی کا نظام قائم کرنے کی ہدایت۔ نگران وزیر اعظم کی غیر قانونی کان کنی روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت۔ پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے اعلیٰ سطح اجلاس، قدرتی وسائل کی تلاش اور کان کنی کے شعبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں پیش رفت پر بریفنگ۔ مختلف ذخائر سے تیل اور گیس کی ترسیل کے لیے پائپ لائنوں کے پروجیکٹ سے متعلق آگاہ کیا۔ قدرتی وسائل کی صلاحیت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے مزید اقدامات ضروری ہیں۔ وسائل تک رسائی کے لیے روڈ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی سے ایران کے سفیر رضا امیری مقدام کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور سمیت میڈیا کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ فلم اور میڈیا کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں مرتضیٰ سولنگی۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے مشیر انسانی حقوق مشعل ملک کی ملاقات۔ خارجہ امور اور انسانی حقوق کی وزارتوں کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی صدارت میں اجلاس، نگراں وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے اہداف کا جائزہ، مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ملک میں امن و امان کا قیام حکومت کی اہم ترجیح ہے، کسی بھی فرد یا گروہ کی جانب سے تشدد پسند سرگرمیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، نگراں وزیر داخلہ۔ ایوان صدر میں ترکیہ کے نیول فورسز کے کمانڈر کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ترک نیول فورسز کے کمانڈر ایڈمرل ارجمن تتلوگلو کو نشان امتیاز ملٹری دیا۔ تقریب میں سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل امجد خان نیازی سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کراچی میں تاجر برادری اور معاشی ماہرین سے ملاقات۔ معاون خصوصی ڈاکٹر جہاں زیب خان اور ڈی جی ایس آئی ایف سی کی کونسل سے متعلق تفصیلی بریفنگ۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ سرمایہ کاروں اور معاشی ماہرین کا کونسل کی پالیسیز پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، بنگالی، پٹھان یا پنجابی نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ توانائی بچائیں، معیشت بچائیں، انرجی بچائیں۔
The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान के बेपनाह कुदरती वसाइल की सलाहियत को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए न सिर्फ ठोस इकदामात उठाना होंगे बल्कि कुदरती वसाइल तक रसाई के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम डिवीजन के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि गैर कानूनी कानकनी को रोकने के लिए सख्त इक़दामात उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराह की तकर्रुरी जल्द की जाए और इस सिलसिले में तमाम कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम डिवीजन की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन मुल्क में तेल और गैस की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम पर काम कर रही है। पेट्रोलियम डिवीजन मुल्क में मज़ीद कुदरती वसाइल की तलाश के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुख्तलिफ ज़खायर से तेल और गैस की तरसील के लिए पाइप लाइनों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दी जा रही है, जबकि माइनिंग सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुस्बत समत में पेशरफ जारी है। इजलास में निगरान वफाकी वज़ीर पावर और पेट्रोलियम मोहम्मद अली, मुशीर निगरान वज़ीर आज़म अहद चीमा और मुताल्लिका सरकारी अफसरान ने शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि PIA अहम कौमी इदारा है जिसने माजी में शानदार फ़िज़ाई सर्विसेज फराहम करके दुनिया भर में नाम कमाया। PIA को एक बार फिर से बेहतरीन इदारा बनाने के लिए PIA इंतज़ामिया और हवाबाजी डिवीज़न दिन रात काम करें। उन्होंने ये बात पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से आला सतह इजलास की सदारत करते हुए कही। निगरान वज़ीर आज़म को PIA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि दूर दराज इलाकों का मुल्क के दीगर शहरों से फ़ज़ाई राबता मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। PIA की परवाज़ों के औकात कार मुसाफरों की सहूलतों के मुताबिक रखे जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म ने यह भी हिदायत की कि PIA की तंजीम नौ के हवाले से तफसीली मनसूबा जल्द इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश किया जाए। इजलास को बताया गया कि PIA एक्ट 2016 में हालिया तरमीम से PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की राह उस्तवार हुई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हिदायत की है कि स्मगलिंग की रोकथाम के लिए गैर मुनज़्ज़म सरहदी रास्तों पर निगरानी का निज़ाम कायम किया जाए। उन्होंने ये अहकामात इस्लामाबाद में वज़ारत तिजारत की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग के मौके पर जारी किए। इजलास में मुल्की बरामदात बढ़ाने और स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए मुजव्वज़ा इक़दामात के बारे में ब्रीफ किया गया। तजारती सामान की बेहतर स्कैनिंग के लिए तजावीज़ और अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे के तहत तजारत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा भी लिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हुकूमत बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए हक़ाइक़ पर मबनी गैर रिवायती हल तलाश करने के लिए कोशां है। हुकूमत बिजली के बिलों के मामले पर मालियाती इदारों के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद के साथ अवाम के जज्बात मजरू किए बगैर इस मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेगी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के दौरान वहाँ पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों के बाकी रह जाने वाले हथियार इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं और इस चैलेंज से निपटने के लिए मरबूत काविशों की ज़रूरत है। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। बैनुल अक़वामी ज़राए अब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि SIFC के जरिए बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा जिसके जरिए मईशत मुस्तहकम होगी। We are trying to attempt and focus and rearrange whatever space is available to us on fiscal policy, on monetary policy. One of the area for which we already have got legislative and statutory force behind us is the initiative of SIFC. And SIFC is somewhere where the economic revival of 24 million people's future lie. It's agriculture and IT and mines and minerals.
So we are trying not just to showcase that, but also focus on its secretariat, try to provide the basis for any future government. निगरान वजीर आजम ने तवानाई के शोबे के हवाले से कहा कि आलमी इदारों के साथ किए गए माहिदों की पासदारी करते हुए तमाम मुमकिना पहलुओं को मद्देनजर रख कर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरी काबीना इस बात पर मुत्तफिक है कि आवाम को बिजली के बिलों की मद में रिलीफ पहुंचाने के लिए काबिल अमल इकदामात किए जाएं। We have to strike a balance between section of society which is at an economic disadvantaged position, along with our commitments with the multilateral financial institutions. Yes, it's important and it's very near, and it is I'm emotionally committed to it, I'm by heart committed to it, entire cabinet. But what are our realistic options? We are trying to explore that. We are also pursuing them that they should think out of the box solution, that how can we mitigate at the moment and give some sort of relief to these agitated populists. इंतखाबात के हवाले से पूछे गए सवाल पर निगरान वजीर आजम ने कहा कि इंतखाबी अमल से मुतल्लिक तमाम सवालात के जवाब आइन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो भी फैसला करेगा, निगरान हुकूमत इस अमल में पूरी मावनत करेगी। The constitution needs to be looked holistically. All the questions raised, they all are answered within constitution. After having census, is it a requirement to do delimitation? Yes, it is. I am pretty much confident that it would be within the reasonable framework of time. अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दहशतगर्दी का चैलेंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते को दरपेश है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से आलमी ताकतों के इनखला का अमल बेहतर अंदाज में नहीं हुआ और छोड़े गए असलहे के बाइस दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। The leftover gadgets by US and its allies in Afghanistan should have been handed over to an entity which could have been responsible. Fighting capacity of these outfits has been enhanced. This is a challenge which probably was not well thought of. And this is a challenge which needs to be responded. एक सवाल के जवाब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि 9 मई जैसे वाकयात कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनका कहना था कि पूरी कौम यकजुबान है कि कानून हाथ में लेने और कौमी तनसीबात की हुर्मत को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से दिफाई तज्ज़ियाकार और सिक्योरिटी माहिर इकराम सहगल ने मुलाकात की। इकराम सहगल की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक से मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से दिफाई तज्ज़ियाकार और सिक्योरिटी माहिर इकराम सहगल ने मुलाकात की है। इकराम सहगल की वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने अपनी मुस्बत हिकमत अमली वाज़े करने के हवाले से कराची में सिंध की ताजिर बिरादरी और माशी माहिरीन के साथ एक मुबाहसे का एहतमाम किया। इस मौके पर मुआविन खुसूसी डॉक्टर जहांज़ेब खान और डायरेक्टर जनरल SIFC ने काउंसिल के हवाले से तफसीलात फराहम की। पाकिस्तान के ज़रई, लाइव स्टॉक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमाए के लिए बेहतरीन सलाहियतें मौजूद हैं। इजलास में इन तमाम पहलुओं को उजागर किया गया जो मुल्क में सरमायाकारी की फ़ज़ा को कारोबारी हजरात के लिए बेहतर बनाने के लिए मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। इजलास में सरमायाकारों को सरमायाकारी की जानिब माइल करने के लिए इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि SIFC इनकी सरमायाकारी लाने के लिए सहूलियात फराहम करेगी। इजलास में मुल्क भर के सरमायाकारों और माशी माहिरीन ने भी भरपूर शिरकत की है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जमहूरिया तुर्की के नेवल फोर्सेस के कमान अर्जुमन ततलाओ को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता किया। एजाज देने की तकरीब ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुई। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। तुर्की के बहरी अफवाज के कमांडर एडमिरल अर्जुमन तुतलोगलू को ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाली पुरवकार तकरीब में निशाने इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। सदर ममलकत ने टर्किश नेवल फोर्सेस के कमांडर को ये एजाज पाकिस्तान के एक मुखलिस दोस्त और दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात,
بالخصوص بحریہ اور میری ٹائم کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے اعتراف میں دیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی، پاکستان میں ترکی کے سفیر اور اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک ایڈمرل ارجمن توتلوغلو ٹرکش نیول اکیڈمی اور نیٹو ڈیفنس کالج کے گریجویٹ ہیں۔ انہوں نے یورپی یونین پالیسی اینڈ پولیٹکس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ اپنے کیریئر کے دوران مختلف کمانڈ اینڈ سٹاف عہدوں پر تعینات رہے۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی سے پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور، دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات، میڈیا کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی، تجارتی، ثقافتی، سیاحت اور عوامی سطح پر روابط سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم اور وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران گہرے مذہبی، ثقافتی اور لسانی رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کی حکومتیں اپنے عوام کی بہتری اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے قریبی تعاون کو فروغ دے رہی ہیں۔ اس ملاقات میں ایران کے ساتھ میڈیا اور ثقافتی وفود کے تبادلوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان میڈیا کے شعبوں میں تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ فلم اور ڈرامہ کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے ایرانی سفیر کو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے اقدامات سے متعلق آگاہ کیا۔ ایران کے سفیر نے علاقائی تعاون میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کی دلچسپی کو سراہا اور اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ ناظرین، آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 46 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم اوپن مارکیٹ کی اگر بات کریں تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جی ناظرین، آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 46 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم اوپن مارکیٹ جہاں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری ظفر پراچا کے مطابق آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ جناب آپ سے شیئر کریں کہ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 46 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ظفر پراچا جو کہ ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے کی کمی واقع ہوئی ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 1 روپے 46 پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، تاہم اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یوم دفاع کل بھرپور ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جائے گا کہ مادر وطن کی حفاظت کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ 6 ستمبر 1965 کی 17 روزہ جنگ میں مسلح فوج نے قوم کی حمایت سے جرأت و بہادری کی وہ لازوال داستانیں رقم کی جو آج بھی دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں رانا شہزاد السلام۔ جنگ ستمبر پاکستانی قوم کے دفاع وطن کے عزم سمیم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو بھارت کی جانب سے مسلط کی جانے والی جنگ کا جواب مسلح افواج نے ایسی بہادری سے دیا کہ جوڑیاں سے لے کر چونڈا کے محاذ تک دشمن اپنی بے مثال شکست کا آج بھی ماتم کر رہا ہے۔ 1965 میں ہر جوان میں، ہر افسر صاحبان میں بڑا جوش اور جذبہ تھا، اور ہم نے جذبے سے جنگ جیتی، جذبے سے ہی ہم لڑے۔ پوری قوم ابھی بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ 6 ستمبر وہ تاریخی دن تھا جس روز ہر مکتبہ فکر کے لوگ اتحاد اور یکجہتی کی علامت بن کر ابھرے۔ یہ وہ سنہری دن تھا جب پوری دنیا نے حقیقی معنوں میں قومی اتحاد کا نظارہ کیا۔ یہی وہ قومی اتحاد اور یکجہتی تھی جس کی بنا پر ہماری افواج نے اپنے سے 2 گنا بڑی دشمن فوج کو
शिकस्त का मजा चखाया। पाक वतन की मिट्टी में अनगिनत शोहदा और गाजियों का खून शामिल है। आए आज मिलकर इन शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करें, जिनकी कुर्बानियों की वजह से हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आए अहद करें कि हम 1965 वाला इत्तेहाद दोबारा से कायम करेंगे, ताकि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त दे सकें। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम दिफा वो दिन है जो माजी की कई यादें ताज़ा करता है, जिसमें शहीदों के लहू से लिखी गई पाक अफवाज की बहादुरी की कई दास्तानें रकम हैं। मुल्क कौम की सलामती की खातिर सरहदों पर मौजूद जर्री जवान आज भी डटे हुए हैं। तफसील कराची से ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। सरजमीन पाकिस्तान की हिफाजत का अज़्म लिए 6 सितंबर को मुल्क के गयूर पासबान दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाते जिस अंदाज से लड़े, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस जंग में अफवाज पाकिस्तान ने यह साबित किया कि जुर्रत, बहादुरी और जज्बे के सामने अददी बरतरी की कोई अहमियत नहीं। मुल्क की सलामती की खातिर बहने वाला शहीदों का लहू आज भी कौम को अपने जवानों की कुर्बानी की याद और एहसास दिलाता है कि सरहदों पर हमारी हिफाजत के लिए डटे सिपाही दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानंद हैं। दुनिया में हमेशा नेशंस के सर्वाइवर के लिए एक मजबूत फौज की ज़रूरत रही है। 65 की वॉर पाकिस्तानी फौज ने जिस बेबाक तरीके से और बेखौफ तरीके से लड़ी, दुनिया के इम्पोर्टेंट रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इस जंग को हाईलाइट किया है कि किस तरह से कम फौज में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वो वॉर जीती। मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो फौज के साथ जुड़ी हुई है। नेशन की जो एक्चुअली जो नॉमेनक्लेचर है वो कंप्लीट नहीं होता। 65 और 71 की जंगों के बाद मुहाज आराई का ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि दुश्मन आज भी मुल्क को कमजोर करने की ताक में है और मुख्तलिफ हरबों से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि जब भी हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन को नाकामी का सामना करना पड़ा। पाक अफवाज ने हर सतह पर अपनी पेशा वराना सलाहियतों को मनवाया है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आज इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹1.40 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, ताहम ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई है। जी नाज़रीन, अब इस कमी के क्या असरात हैं और ये कमी कैसे वाक़ हुई है, इसमें एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा, जिनका ये बयान सामने आया कि आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹5 की कमी हुई है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर, एक तो ये शेयर कर दीजिएगा कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ रही है, ओपन मार्केट में ₹5 की कमी वाक़ हुई है। एक तो ये कि ये बाकायदा किस तरह से ये फ़र्क आया है, और दूसरा ये कि कमी कैसे वाक़ हुई है, क्या इक़दामात थे, क्या पीछे जो है वो स्टेप्स थे कि जिसकी वजह से ये कमी वाक़ हुई है? देखिए जनाब, बात यह है कि जो अभी 2 रोज़ पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुलाकात की है लाहौर और कराची में कारोबारी लोगों से, तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है और उन्होंने हर एरिया पे बात की है, बिजनेस के हवाले से, सियासत के हवाले से और मुल्क की सलामती के हवाले से, हर तरह। तो जो लोग भी उनसे मिल के आए हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है और एक तरह से नई उम्मीद पैदा हुई है, क्योंकि जो 3-4 रोज पहले हालात बने हुए थे वो ऐसा लगता था कि खुदा ना करे 1971 वाली पोजीशन पे लोग चले गए थे, इतनी ज्यादा। पराचा साहब, आप हमें सुन सकते हैं? ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे, किसी वजह से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे दोबारा राब्ता जो है वो हमारा जुड़ जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.40 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में जो एक्सचेंज रेट था उसमें डॉलर की कीमत में कमी वाक़ हुई है और ₹5 की कमी वाक़ हुई है। ज़फ़र पराचा जो हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई ताजिर बिरादरी से, बिजनेस कम्युनिटी से, उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो बूस्टर मिला उनको, ताजिर बिरादरी को, वो तमाम के तमाम अवामिल ऐसे थे कि जिनकी वजह से ये हम समझ सकते हैं कि डॉलर की कीमत में ओपन मार्केट में बाकायदा ₹5 की कमी वाक़ होती हुई। बिल्कुल। और रिजवान, कल भी हमारे एक माहिर मौशियात से बात हो रही थी तो उनको ये कहना था कि डॉलर की जो बढ़ती हुई परवाज है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये जो होर्डर्स हैं, जिन्होंने इस डॉलर को जो है वो संभाल के रखा हुआ है, और इस वक्त में जब मुल्क को ज़रूरत है पैसे की और ख़ासतौर पर इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, तो वो उन्होंने जो होर्डिंग की हुई है उसकी वजह से भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन बाहर तो हुकूमती इक़दामात जारी हैं और एतमाद की इस फ़ज़ा को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये
इनकरेज करने की ज़रूरत है लोगों को कि इस वक्त के अंदर जब ज़रूरत है मुल्क को कि उसमें डॉलर मौजूद हो तो उसको होल्डर जो हैं वो इस जानिब तवज्जो दें और मार्केट में जो है वो डॉलर को वापस लेकर आएँ ताकि जो डॉलर की कीमत है वो नीचे आए और पैसा जो है वो हमें अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आए, क्योंकि डॉलर की कीमत के लिए जो इक़दाम हुकूमत की जानिब से लिए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर रिजवान ये बात करना बहुत ज़रूरी है, SIFC जो फोकस कर रहा है तवानाई पर भी, ज़राअत पर भी, मादनियात पर भी और दीगर जो शोबे हैं वो बड़ी ज़रूरी है मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए। जी बिल्कुल, ज़फ़र पराजा साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। ज़फ़र पराजा साहब ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा, आप अब जिक्र कर रहे थे कि आर्मी चीफ से मुलाकात की वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उसकी वजह से ये कमी वाकई, और कौन कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हमारे सामने आ रही हैं? देखिए, जो एक तो स्पेकुलेटर्स को जो हैं उनको स्मगलर्स को क्लियर मैसेज गया और कल पेशावर में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं, खास तौर पे जो दो बड़े स्मगलर्स हैं उनको पकड़ा गया है और हवाला हुंडी ऑपरेटर भी वो मेन किरदार है वो। तो उसकी वजह से आज पेशावर की मार्केट में डॉलर खरीदने वाला या करेंसी खरीदने वाला कोई नहीं था, तो उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क में आया। एक तो मेन वजह ये है। और आज जो इंटरबैंक के अंदर रेट बढ़ा वो नहीं बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो सेंटीमेंट्स बने हैं उनको हमको सेंटीमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, जिसके ऊपर आर्मी चीफ ने बात की थी, ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट पे। फिर एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आज ये आया कि जो कुछ गुजरांवाला और कुछ दीगर शहरों में पुलिस के लोग एक्सचेंज कंपनीज के अंदर आके बैठ गए और वो ये कहते थे कि हमको सर्वेलेंस करनी है, हमको ये देखना है कौन लोग डॉलर ले रहे हैं, कौन लोग बेच रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया। और जो इनफ्लोज आज आने चाहिए थे मार्केट नीचे होने की वजह से, वो इनफ्लोज नहीं आ सके। हमारे पास आज ना बायर था ना कुछ सेलर था। तो ये ज़फ़र पराचा साहब की आवाज़ जो है वो दोबारा हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र पराचा, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, बात हो रही थी इंटरबैंक में डॉलर की कदर में जो 1 रुपये 46 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिस पर ज़फ़र पराचा साहब का ये कहना था कि ये रिकॉर्ड नहीं, ये इजाफा भी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। जो सेंटीमेंट, एक अच्छा सेंटीमेंट चल रहा था उसको कैरी ऑन किया जाना चाहिए था, कंटिन्यू किया जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी हुई है और बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं जिन पर हुकूमत भरपूर तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये जो डॉलर का बाकायदा परवाज है डॉलर की, इस पर काबू पा लिया जाएगा, इसके पर उतर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और कुछ हिकमत अमलियाँ भी ज़ेर गौर भी हैं, कुछ इक़दाम का कह भी दिया गया है, हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। तो यकीनी तौर पे आने वाले वक्त में हम ज़रा स्लो ही है लेकिन हम देखेंगे कि मईशत पे इसके पॉजिटिव जो असरात हैं वो पड़ना शुरू हो जाएंगे। चलिए जी, हम आगे बढ़ते हैं शो में। 1965 की बात कर रहे थे तो 1965 के तारीख साज मौके के लिए पाक फौजी नहीं, बच्चा बच्चा पुरजोश था और पाकिस्तानी कौम ने ये जंग जोश व जज्बे के साथ जीती। जंग का पता चलते ही कोई सियालकोट की सरहद पर पहुंचा तो किसी ने छम जोड़ियां के मकाम पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया और पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पूरी कौम आज भी अपनी फौज के साथ खड़ी है। तो पता लगा कि इंडिया ने लाहौर और सियालकोट बॉर्डर पर अपना आर्मड फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से हमें वापसी मूव करना पड़ा रायबंड। जब उधर पता लगा कि 10 FF जो लगी हुई है खेमकरन, तो उधर उनके 2 APC खराब थे। मुझे सीनियर JCO ने आर्डर दिया कि आप 2-3 VM इलेक्ट्रीशियन मुख्तलिफ ट्रेड के बंदे लेकर स्पैनर पेट्रोल पर उधर मूव करें। मैं जब उधर गया तो देखा 2 APC बाकी खड़े हैं और उधर जब देखा तो सन्नाटा छाया हुआ था। मैं बरसालदर गयास मोहम्मद, 1965 की जंग में हम जो ना छमचौड़िया में थे। हमें पता चला भाई जो ना गुजरात तैयार हो के वहाँ से भी दुश्मन आ गया और वो गड़बड़ कर गया। भाई आप लोगों ने जंग में तैयार हो गए, हम सारे बिल्कुल ये कपड़े पहना दिए, समझे, सारा असला दे दिया। तो 4 बजे आके दुश्मन का मुकाबला करे जी वहाँ पर जाके छमचौड़िया में। अगर दुश्मन फिर पीछा कर लिया, जम्मू रोड पर पड़ गए, वो भेड़ बकरियों के आग लगा लिए, अपना जौड़ियाँ पर हमने झंडा लहरा दिया। फौज हो गया अपना घोड़े बांध के जो ना पीछा कर लिया। आर्मी को उस वक्त जोश आर्मी का नहीं जी, उधर तो बच्चा का जोश। कमांडर चीफ नूर खान साहब सिग्नल बनाते थे, हमें देते थे, हम उन्हें उस सिग्नल को कोड करते थे और जिस स्टेशन पे हम भेजते थे
वो सेशन रिसीव करके डिकोड करके और फिर जिसको देना होता था उसको देते थे। लेकिन हमने भी ऐसा करके दिखाया कि हमारे जवानों ने पेट पर जो है गोला बांध लिया, आगे लेट गए। जब देखा भाई ये तो नहीं रुक सकते और तमाम उनके टंक तबाह हो जाते थे। यौम दिफा के मौके पर सहाफ़ी बिरादरी का कौम के लिए ख़ास पैगाम। 6 सितंबर के तारीख़ी दिन पे हर मकतबा फ़िक्र के लोग इत्तेहाद और यकजहती की अलामत बने। तारीख गवाह है कि 6 सितंबर को दीनी रहनुमा भी एक सफ़ में नजर आए। अहद करें कि हम 1965 वाला इत्तेहाद दोबारा से कायम करेंगे ताकि अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त दे सके। 6 सितंबर 1965 वो तारीखी दिन था जिस रोज हर मकतबा फिक्र के लोग इत्तेहाद, यकजहती और यगानगत की इलामत बन चुके थे। तारीख गवाह है 6 सितंबर 1965 को जिस तरह दीनी रहनुमा एक सफ में खड़े नजर आए। शायरों ने अपने फन के जौहर दिखाए, गाने वालों ने अपनी आवाज से कौम के लहू को गरमाया। बच्चे, बूढ़े, मर्द व खवातीन सब जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे और कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह से अपनी अफवाज के पुश्त पे खड़ी थी। और अहद करें कि हम अपनी सफों में 1965 वाला इत्तेहाद दोबारा से कायम करेंगे ताकि अंदरूनी, बैरूनी, जाहिरी और छुपे हुए दुश्मनों को शिकस्त दे सकें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार अहमद ने पंजाब के कैंट कमिश्नर अब्दुल रऊफ से गुफ्तगू की है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। जी, पंजाब के केन कमिश्नर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जो मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और पाकिस्तान में कितनी चीनी पैदा होती है, इस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। कीमतों का जो बढ़ने का ट्रेंड देखा गया था पाकिस्तान में और पंजाब में भी ऐसे ही है। ये अप्रैल 2023 में ये जो कीमतें बढ़नी शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 20 अप्रैल 2023 को चीनी की कीमतें पूरे पाकिस्तान के लिए फ़िक्स कर दी। शुगर मिलों के साथ मुशावरत की उन्होंने, सारे केन कमिश्नर से की, सूबों से भी की और उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जिसमें उन्होंने चीनी की कीमतें मुकर्रर कर दी थी। लेकिन तकरीबन 15 दिन के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया, स्टे ऑर्डर इशू कर दिया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, कोई कानूनी पोजीशन नहीं रही कि वो इसको किसी कीमत के ऊपर मजबूर कर सके कीमत को नाफिज करने के लिए। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो बाज़ार में कीमतें जो हैं चीनी की उनको मुकर्रर कर सके या मेंटेन कर सके। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस साल जो क्रशिंग सीज़न था शुगर का, उसमें 77 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा पाकिस्तान में चीनी की पैदावार हुई थी। अगर हम पंजाब को देखें तो उसमें 44 लाख मैट्रिक टन की पैदावार हुई थी चीनी की। और पंजाब में पिछले साल का जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था वो 5 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा था, मीनिंग देयर बाई 50 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा हमारे पास पंजाब का जो स्टॉक था वो हमारे पास मौजूद था। हमारी कंजम्पशन है वो तकरीबन 4 लाख मैट्रिक टन हमारी एवरेज, जो अगर हम देखें एक महीने की पंजाब के तमाम अजला में हर जगह मिला के वो हमारी कंजम्पशन होती है। तो इस वक्त जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो 13 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा हैं। नया क्रशिंग सीज़न शुरू होने में अगर हम देखें तो 3 महीने से कम का वक्त रह गया है। अगर 3 महीने भी हो तो हमारा 13 लाख मैट्रिक टन जो है वो हमारा स्टॉक जो है हमारी पंजाब की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। कीमतों के तयन के हवाले से बाकायदा शुगर मिलें जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ब्रोकर्स हैं और सारे पाकिस्तान के जो केन कमिश्नर्स हैं, गवर्नमेंट से उनसे इनपुट लिया जाता है। 20 अप्रैल 2023 को फेडरल गवर्नमेंट ने कीमतें मुकर्रर की थी। उसमें वो फिर देखते हैं इसमें जो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उसमें मुख्तलिफ इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनपुट्स होती हैं, इनके अखराजात होते हैं, उसको देख के बाहम मुशावरत करके फिर एक ख़ास लेवल पे जाके कीमतें फ़िक्स कर दी जाती हैं जो कि नाफिज़ अमल होती हैं कि उनके मुताबिक चीनी को बेचा जाएगा। क्या सिर्फ एक्सपोर्ट का एलिमेंट है या दीगर एलिमेंट भी हैं जो कीमतों में इजाफा हो रहा है? अगर एक्सपोर्ट की वजह से कीमतें बढ़ती तो इस वक्त हमारे पास स्टॉक्स जो हैं वो पंजाब में ना पड़े होते। जी नाज़रीन, शो अभी जारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नमाज मगरिब का वक्त हुआ है। अज़ान मगरिब सुनने की सादत हासिल करते हैं।
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ناظرین، نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی کی صدارت میں نگراں وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے اہداف پر جائزہ اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ نگران وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں امن و امان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کسی بھی فرد یا گروہ کی جانب سے تشدد پسندانہ سرگرمیوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ پاک ایران سرحد پر 3 مزید بارڈر کراسنگ کھولنے کے حوالے سے ایکشن پلان جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ان کے دائرہ کار کا واضح تعین انتہائی ضروری ہے۔ سول آرمڈ فورسز کی بہتری کے لیے جدید ترین تربیت اور وسائل فراہم کریں گے۔ کاروباری اور سرمایہ کاری کے لیے ویزا درخواست گزاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے آئندہ ہفتے اجلاس طلب کر لیا گیا۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے نگران وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی۔ نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ ملاقات میں امور خارجہ اور انسانی حقوق کی وزارتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ سماجی ہم آہنگی اور تنوع کے موضوع پر اسلام آباد میں دوسری قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اقلیتی امور کے نگران وفاقی وزیر نے شرکت کی اور معاشرے میں برداشت کے کلچر کو پروان چڑھانے پر زور دیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ معاشرے میں سماجی ہم آہنگی کیسے لائی جا سکتی ہے، اہم سوال پر مباحثے کے لیے اسلام آباد میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے اقلیتی امور نے کہا کہ پاکستان میں بگاڑ کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر محبت سے ہم اس جنگ کو جیتیں گے۔ اقلیتوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ انسانوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہ جہاں بھی ہوں، کہیں بھی ہو، یا وومنس کے ہوں یا چائلڈ کے ہوں، ہم ان کو ایک معاشرے کا مہذب شہری بنانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ بھی ایسے واقعات کرتے ہیں جو انسانی وائلیشن کرتے ہیں ان کو ہم قرار واقع سزا دیں گے۔
मुकर्रिरीन ने पायदार तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए अदम बर्दाश्त के रवैयों को खत्म करना लाजमी करार दिया। ये बहुत जरूरी है कि हम पाकिस्तानियत लाएं, नेशनल इंटीग्रेशन लाएं। सोशल कोहिजन किसी एक फ़र्द का नहीं बल्कि हर एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि यहाँ पर जो है वो जमहूरियत में समाजी हमआहंगी को फ़रोग देने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के माशरे में जितनी तकसीम है, समाजी तकसीम है, मजहबी बुनियादों पर है, अकायद की बुनियाद पर है और फिर एक मुआशी तकसीम भी है, तो इस माशरे को हमआहंगी की तो अशद ज़रूरत है। मुकर्रिरीन का कहना था कि तमाम तबकात अपने अंदर मुस्बत सोच को परवान चढ़ाएं ताकि माशरे में हम आहंगी पैदा हो सके। पाकिस्तान के लिए सबको तजदीद अहद करना होगी। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के मरकज़ी चेयरमैन मौलाना ताहिर मोहम्मद अशरफी ने कहा है कि गुज़श्ता दिनों जो वाक़यात पाकिस्तान के 2-3 शहरों में रूनुमा हुए जिनका मकसद हमसाया मुल्क की तरफ से इंतशार पैदा करना था। ये बात उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारा G20 की क़यादत से मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान के मज़ालिम और अक़लियतों पर जुल्म को मद्देनज़र रखे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा है और गुज़श्ता दिनों होने वाले मुस्लिम मसीही फसादात के ताने बाने खुफिया भारतीय एजेंसी से मिलेंगे। हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर तवज्जो दे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं कि मौसम जो है वो आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में मरतूब रहेगा। तहम खिता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। चौधरी मोहम्मद असलम साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं कि मौसम कब तब्दील होने जा रहा है और आइंदा कुछ दिनों में नियर फ्यूचर में कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम जी। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का, हमारे शो का हिस्सा बनने का। सर, कल रात भी हमने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुल्हिका इलाकों में देखा कि अचानक जो है वो बादल आए और बड़ा शदीद तूफान आया, और आज जो है ये कहा जा रहा है कि खुश्क भी रहेगा, मरतूब भी रहेगा। बेशतर इलाकों में इस्लामाबाद और खिता पोठोहार में और कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश भी हो सकती है। सर ज़रा शेयर कीजिएगा कुछ तफसीलात के आइंदा नियर फ्यूचर में 1-2 दिन में आगे मौसम कैसा रहेगा। देखिए, अभी जो वेस्टर्ली वेव जो रात भी बारिश हुई है जो इस्लामाबाद वगैरह में, तो ये उसका असर है। अभी वो उसके असरात बाकी हैं अगले 24 घंटे में। अगले 24 घंटे में भी जो खिता पोठार और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद में भी हल्की बारिश के इम्कान है। लेकिन कल के बाद अगले कोई 3 से 4 रोज में मौसम क्लियर होगा और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी खुश्क होगा, बाकी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में खुश्क होगा। लेकिन जो डे टाइम टेम्परेचर है वो थोड़े बढ़ेंगे, क्योंकि अब मॉइस्चर अरेबियन सी जब बंगाल से जो मानसून की है वो कम हो गई है। तो आने वाले दिनों में आप कह सकते हैं कि गर्मी की शिद्दत में थोड़ी इजाफा होने का इम्कान है। अच्छा, चौधरी मोहम्मद असलम साहब, यकीनी तौर पे इंसानी फितरत है, सर्दियां होती हैं तो हमें गर्मियां सताने लगती हैं कि वो कब आएंगी, गर्मियां आती हैं तो हमें सर्दियों की फिक्र खाई जाती है कि वो कब आएगी। तो अब जरा ये बात होने लगी है कि अब लगता है मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, तो सर्दियां कब तक जो है वो हम देखेंगे, और ये हब्स तो काफ़ी हद तक वैसे कम हो चुका है, लेकिन ओवरऑल हम चेंज कब तक देखेंगे? बिल्कुल, अभी जो मानसूनल जो विंड्स वगैरह थी वो अभी रिट्रीट होना शुरू हो गई हैं, तो अभी आने वाले दिनों में मॉइस्चर भी कम होगा, फर्दर कम होगा। लेकिन सर्दियां तो जैसे नॉर्दर्न एरिया वगैरह में वहाँ पे पहले आ जाएंगी, लेकिन जो पंजाब और केपी अपर केपी में पहले आएंगी, लेकिन पंजाब में तो अभी कोई 2 से 3 माह यानी नवंबर में जाके सर्दियां आने का इम्कान है। सही। चौधरी मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में हमें वक्त देने का। लें जी, चौधरी साहब के मुताबिक जो है अब गर्मियों में इजाफा होने लगा है, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि मानसून जो है बहरहाल अब ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। नाज़रीन, न्यूज़ शो में आगे बढ़ते हैं। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। उर्स में मुल्क के तूलो अर्ज से अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद शरीक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवीद हयात की इस रिपोर्ट में। हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ चादर पोशी की तकरीब से हुआ,
जिसमें निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, साबिक वफाकी वजीर इसहाक डार ने शिरकत की और मुल्क व कौम की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर महफिल किरत, महफिल नात और मुनकबत भी पेश की गई। वजीर आला ने हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बारे में डॉक्टर ताहिर रजा की कुतुब की रोनुमाई भी की। जायरीन के लिए दूध की सबीलों के साथ लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जायरीन हमारे मेहमान हैं, जिन्हें तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। जायरीन के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए कि उनको आराम मैसर हो, उनको लंगर खाने में सही तरीके से इज़्ज़त के साथ खाना मिले। उसके अलावा दूध की सबील के सिलसिले में भी 2 दिन से ये बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सब की इज़्ज़त और उन सबको एक मेहमान की हैसियत से उनका ख्याल रखें। उर्स में मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद जोक दर जोक शिरकत कर रहे हैं। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जायरीन को मुकम्मल तलाशी के बाद मज़ार में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। ये तकरीबात 7 सितंबर तक जारी रहेंगी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। दरिया सतलुज में 35 साल के तवील अरसे के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से हेड सलमानकी से हेड पंजनत के दरमियान सैकड़ों आबादियां शदीद मुतासिर हुई हैं। सैलाबी नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बहावलपुर से अब्दुल्ला मुख्तार की रिपोर्ट देखते हैं। दरियाए सतलुज में आने वाले सैलाब से जनूबी पंजाब के 3 अजला बहावलनगर, लोधरा और बहावलपुर बुरी तरह मुतासर हुए। बहावलनगर की तीनों तहसीलों बहावलनगर, मिंचनाबाद और चिश्तिया में सैलाब के बाइस 1,66,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए, जबकि 1,60,000 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हुई। 17,549 घरों को मुकम्मल या जुजवी नुकसान पहुँचा। 157 देहात सैलाबी रेले से मुतासर हुए। हिफाजती बंद और सड़कें टूटने से 100 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हुआ। दरियाई इलाकों में कायम 43 स्कूल भी सैलाब की वजह से मुतासिर हुए। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने पानी में फंसे 13,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जिला लोधरा में सैलाब की वजह से 50,000 एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि 40 मवाजियात के 325 गाँव मुतासिर हुए। सारे को इतना दरिया है कि सारा कुछ सारे बुढ़ा गए, फसलें सारे तबाह थी गए सारियां, फौरी तौर सारी इमदाद की वजह। अब पानी जो है वो रसीड हो रहा है। अब अगला हमारे लिए जो चैलेंज होगा वो इन लोगों को वापस इनके आबाई घरों में या इनकी ज़मीनों पर रीसेटल करना है। उसकी भी तैयारी हमने मुकम्मल की हुई है। जिला बहावलपुर की 5 तहसीलें हासिलपुर, खैरपुर टामे वाली, बहावलपुर सदर, सिटी और अहमदपुर शर्किया सैलाब से मुतासिर हुई, जहां 80,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर हो गयी। 1,62,867 अफराद बेघर हुए, जबकि जिला इंतजामिया की जानिब से 28 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। अब्दुल्ला मुख्तार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, बहावलपुर। नाज़रीन, मेलसी में सैलाब मुतासरीन के लिए पहला मेडिकल कैंप मौजा झोंक जिंदू में लगाया गया। कैंप में सैलाब मुतासरीन को मुफ्त इलाज, मुफ्त अद्वियात फराहम करने के साथ साथ मुतादिद गरीब अफराद को खाना भी दिया जा रहा है। मजीद तफसील बता रहे हैं मेलसी से चौधरी हसन महमूद। दरिया सतलुज में हालिया सैलाब से मेलसी में 49 मौजाजात की सैकड़ों बस्तियां मुतासर हुई हैं। सैलाबी पानी में घिर जाने की वजह से अक्सर इलाकों का ज़मीनी राब्ता दूसरे इलाकों से कट गया है। मुतासरीन की इमदाद के लिए मुमताज़ सर्जी मेड हस्पताल विहाड़ी की जानब से मौजा झोंक जिंदू में मुनक़दा मेडिकल कैंप में ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का इलाज किया गया। कैंप की निगरानी डॉक्टर मोहसिन मुमताज़ और उनके मेडिकल स्टाफ ने की। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने एक फ्री कैंप किया और उसमें हम लोगों ने मोर देन 300 पेशेंट्स जो है उनको चेक किया और एलर्जी की और स्किन की प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। बाकी इसके अलावा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और इस तरह की प्रॉब्लम्स। तो हम लोग वाफर मकदार में मेडिसिन लेकर आए थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट भी की। इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे हम काबू पालें। कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, स्किन, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी के मरीज़ों का मुफ्त चेकअप और इन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई, जबकि कैंप इंतज़ामिया की तरफ से 250 अफराद को खाना भी दिया गया। मरीज़ों ने इस मुश्किल वक्त में मेडिकल कैंप को अपने लिए नेमत करार दिया। इधर सलाबा या डॉक्टर साहब आए विहाड़ी से और इन्होंने हमारी मदद की है। विहाड़ी जो डॉक्टर साहब आए अच्छी दवाई दे गए, परेशान से बाला आले भी सारे जड़ी कहें मार जहाई दवाई थे आते दे गए। शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब दवाई देती है, शुक्र हाल यहाँ आया मंजूर करे अल्लाह सही साकू जो है ना परेशानी आई। ऐसे कैंपों का इनेकाद करके मुखैर हजरात सैलाब मुतासरीन की मदद करके उनकी मुश्किलात में कमी का जरिया बन सकते हैं। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी।
جنازی اس کے ساتھ ہی لائیو نیوز شو ایٹ 6 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بہت شکریہ. رضوان رونق اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.